آئیے ہم خدا کے کلام کو واضح کے عنوان فسا راہ اور حق ہے کے ساتھ سیکھتے ہیں۔ فرض کریں اگر خدا نے ہمیں فسا کی سچائی نہ دی ہوتی تو کیا ہمارے لیے اس زمین پر خدا کو پہچان پانے لائق کوئی دوسرا طریقہ تھا؟ چونکہ خدا ایک عام آدمی کی طرح جسم لے کر آئے تھے، اس لیے یوں خدا کو پہچان پانا مشکل ہوتا۔ اگر ہم خدا کو پہچان پانے کے قابل نہ ہوں تو ہم خدا باپ کو پہچان نہیں پائیں گے، اور پھر فطری طور پر ہم خدا ماں کو بھی نہ پہچان پائیں گے۔ اگر یہ جانے بغیر کہ ہم آسمانی بچے ہیں تو ہم زمین پر ہمیں دیا گیا وقت ضائع کر دیتے۔ موت کی جانب جانے والی راہ پر بغیر کسی امید اور خوشی کے ہم قابل ترس زندگی گزارتے۔ تاہم خدا نے ہم پر اور ہماری تقدیر پر ترس کھاتے ہوئے بنی آدم کو فسح کہلائی جانے والی پاک اور بیش قیمت عید بخشی۔ جیسا کہ خدا نے زمین پر رہتے ہوئے زندگی گزاری تو حتیٰ کہ مصور، شاعر اور موسیقاروں جیسے لوگوں نے خدا کے شاندار کاموں کے لیے انہیں جلال دیا اور تمجید کی۔ چونکہ یسوع مسیح کے دنوں میں تصویریں کھینچنا ممکن نہ تھا، اس لیے مصوروں نے مصوری کے ذریعے خدا کے کاموں کی کشی کی۔ میرا ماننا ہے کہ ہر کوئی دی لاسٹ سپر کہلائے جانے والے مشہور فنی کام کو جانتا ہے۔ کیا کوئی ہے جو اس مصوری کو نہ جانتا ہو؟ حتیٰ کہ سچائی کو قبول کرنے سے پہلے بھی کیا آپ دی لاسٹ سپر کے بارے میں نہیں جانتے تھے؟ اگرچہ مصور نے یسوع کی فسح مناتے ہوئے تصویر کشی کی، پر وہ خود جانتا نہ تھا کہ وہ دراصل کیا مصوری کر رہا ہے، اور اسے دی لاسٹ سپر نام دیا۔ اسی طرح دنیا میں لوگ اس سچائی کو نہیں جانتے ہیں۔ اگر مقدسین نے اس منظر کی تصویر کشی کی ہوتی تو اس مصوری کا کیا نام ہوتا؟ کیا یہ نئے عہد کی فسح نہ ہوتا؟ یسوع کی زندگی میں انتہائی بیش قیمت لمحے کو ہمیشہ یاد رکھنے کے لیے مصور نے لوگوں کے لیے اس کی تصویر کشی کی۔ تاہم اس نے اس منظر میں موجود سچائی کو جانے بغیر اس کی تصویر بنائی۔ لیکن اگر میں اپنی اور آپ کی بات کروں تو کیا ہم سب نہیں جانتے کہ یہ زندگی کی عید کا دن تھا؟ ہمیں زندگی اور نجات اور آسمان کی ابدی بادشاہی میں لے جانے کی غرض سے کیا اسی دن یسوع نے نئے عہد کا اعلان نہیں کیا تھا؟ آج آئے ہم سب سے پہلے یوحنا باب 14 میں لکھے خدا کے کلام کو دیکھتے ہیں۔ باب 14 آیت 6۔ یسوع نے اس سے کہا کہ راہ، اور یسوع نے کیا کہا؟ حق اور کیا؟ زندگی میں ہوں۔ کوئی میرے وسیلے کے بغیر باپ کے پاس نہیں آتا۔ یہ ایک نہایت اہم تعلیم اور سچائی ہے جسے ہمیں خود کو جگالی کرنے کی مانند لاکھوں بار دہراتے رہنا ہے۔ یسوع نے کہا راہ اور حق اور زندگی میں ہوں۔ در حقیقت یسوع نے لوگوں کو کہاں لے جانے کی غرض سے راہ ہونے کا کردار نبھایا تھا؟ یہ کچھ ایسا ہے جسے ہمیں ضرور دھیان میں رکھنا ہے۔ وہ کون سا مقام ہے جہاں یسوع راہ کا کردار نبھاتے ہوئے بنی آدم کو لے جانا چاہتے ہیں؟ آسمان کی ابدی بادشاہی کو لے جانے والی راہ کا کردار نبھانے کی غرض سے مسیح زمین پر آئے اور ہمارے لیے بہت سے نمونے قائم کیے۔ آئے ہم کتاب مقدس سے اس کی تصدیق کرتے ہیں۔ یوحنا باب 13 آیت 15 کی تعلیم کو دیکھتے ہیں۔ کیونکہ میں نے تم کو ایک نمونہ دکھایا ہے کہ جیسے میں نے تمہارے ساتھ کیا تم بھی کیا کرو۔ یسوع کے نمونے قائم کرنے کی محض یہ وجہ نہ تھی کہ وہ کتاب مقدس میں موجود ایسی تعلیمات ہمیں دکھائیں۔ در حقیقت ان کے نمونے کے مطابق وہ کیا کام ہے جو ہمیں کرنا ہے؟ پہلے انہوں نے ہمیں کر کے دکھایا تاکہ ہم ان کے نمونے کی پیروی کر سکیں اور ویسا ہی کریں۔ ایک کہانی ہے جو میں نے آپ کو پہلے بھی سنائی تھی۔ ایک دفعہ ایک آدمی نے ایک پرندے کے بچے کو پکڑ کر پنجرے میں بند کر دیا۔
परिंदे की बड़ी आरज़ू थी कि वो पिंजरे से उड़ जाए, लेकिन उसके आजाद होने की कोई राह ना थी। बच्चे के कैद होने के बाद परिंदा माँ पिंजरे के गिर्द उड़ते हुए और ज़ारों को तार रोते हुए कुछ भी ना खा सकी। पिंजरे में अपने बच्चे को देखकर माँ बहुत गमज़दा थी। लेकिन एक दिन परिंदा माँ ने अजीब हरकत की। ये शोर मचाते हुए पिंजरे के गिर्द उड़ना और फिर अचानक जमीन पर गिरना था, गोया वो मर चुकी थी। माँ को देखकर उसका बच्चा हैरान हुआ कि माँ ये क्या कर रही है। एक लम्हे बाद माँ पिंजरे के गिर्द फिर उड़ने लगी और जैसे ही वो अपने बच्चे से नजरें मिलाती, वो दोबारा जमीन पर गिर जाती। उसने ऐसा कई बार किया। बच्चा अपनी माँ की मर्जी को समझने में सुस्त था, लेकिन एक मौके पर उसे समझ आ गई। जो माँ ने किया मैं भी वैसा ही करूंगा। इसलिए पिंजरे में बच्चे ने मरने का बहाना किया, हालांकि वो जिंदा था। जब परिंदे को पकड़ने वाले आदमी ने देखा कि वो मर चुका है, तो उसने उसे पिंजरे से बाहर निकाला और उसे बाहर फेंक दिया। जब वो बाहर फेंका गया तो वही हकीकी खुशी का लम्हा था। वो आजाद हो गया था। बस परिंदा बच्चा खुशी से चहचहाने लगा क्योंकि वो अपनी माँ से दोबारा मिल गया था और वो आसमान की जानिब उड़ गए। परिंदा माँ ने क्या दिखाया था? उसने उसे नमूना दिखाया था। जब बच्चा पिंजरे में था तो उसे बचाने के लिए चूंकि माँ के हाथ या पांव या कोई और जरिया ना था, तो यही एक अक्लमंदाना काम था जो वो कर सकी थी। पकड़े और पिंजरे में डाले जाने के बाद बच्चे का मरना तय था, लेकिन उसकी माँ के दिखाए गए नमूने के बाद वो आजाद हो गया और उस जगह जा पाया जहां वो जी भर कर आजादाना उड़ सकता था। हम भी जमीन कहलाए जाने वाले इस छोटे से सैयारे में कैद हैं, लेकिन खुदा ने हमारे लिए नमूना दिखाते हुए हमें दिखाया कि अब्दी आजादी पाने के लिए हमें क्या करना है ताकि हम उस पर अमल कर सकें। बहुत सी तालीमात में से हम फसा की सच्चाई के मुतालिक खुदा के कलाम का मुताला करते हैं। मत्ती बाब 26 आयत 17 से देखते हैं। और ईद फतीर के पहले दिन शागिर्दों ने यीशु के पास आकर कहा, तू कहां चाहता है कि हम तेरे लिए फसह खाने की तैयारी करें? जब फसह का दिन आया तो शागिर्दों ने पूछा कि हम कहां फसह की तैयारी करें? आयत 18, उसने कहा, शहर में फलां शख्स के पास जाकर उससे कहना, उस्ताद फरमाता है कि मेरा वक्त नजदीक है, मैं अपने शागिर्दों के साथ तेरे यहाँ क्या करूंगा? ईद फसह करूंगा। इससे यीशु मसीह की पुख्ता मर्जी जाहिर होती है। आप सब, यीशु ने ये कहते हुए नमूना कायम किया कि मैं अपने शागिर्दों के साथ फसह करूंगा। खुदा ने हमें कुछ भी ना बढ़ाने और ना निकालने को कहा, लेकिन कलीसियाएं क्या कहती हैं? यीशु ने कहा, मैं इसे मनाऊंगा, लेकिन दुनिया में मुतअद्दिद कलीसियाएं कहती हैं, हम इसे नहीं मनाएंगे। तो फिर उनके साथ क्या होगा? क्या उनकी मंजिल आसमान की बादशाही जहां यीशु गए हैं से मुख्तलिफ जगह नहीं है? खुदा राह बने और नमूना कायम किया और हमें तमाम सच्चाइयों की याद दिलाई ताकि हम उन्हें पूरा करें। तमाम सच्चाइयों में से क्या फसा अहम तरीन सच्चाई नहीं है? इक्तिबास के मुताबिक किसने फसा को तस्लीम किया, इस पर फख्र किया और इसकी तारीफ की? खुदा और किताब मुक़द्दस ने। इन तमाम मामलात की किताब मुक़द्दस तायद करती है। ये ऐसे ही है गोया किताब मुक़द्दस कह रही हो कि हाँ, जिस बात पर तुम ईमान रखते हो वो सही है। वो फसा जिसे तुम मान रहे हो वही है जिसे यीशु ने माना था, और यीशु के नमूने की पैरवी करना ही आसमान की बादशाही की राह है। तो फिर
اس راہ کی پیروی نہ کرنے والے آسمان کی بادشاہی میں نہیں جا سکتے ہیں۔ اگر یہ آسمان کی راہ نہیں ہے تو پھر ایک ہی راہ باقی بچتی ہے۔ یہ کون سی راہ ہے؟ یہ جہنم کی ابدی سزا کی راہ ہے۔ کتاب مقدس سے اس حقیقت کو دیکھتے ہوئے جس فسح کو یسوع نے منایا اسے ہم ہرگز معمولی نہ سمجھیں۔ 26 آیت سے جاری رکھتے ہیں۔ جب وہ کھا رہے تھے تو یسوع نے روٹی لی اور برکت دے کر توڑی اور شاگردوں کو دے کر کہا، لو کھاؤ، یہ میرا بدن ہے۔ پھر پیالہ لے کر اس پیالے میں فسح کی میت تھی، شکر کیا اور ان کو دے کر کہا، تم سب اس میں سے پیو، کیونکہ یہ میرا وہ عہد کا خون ہے جو بہت تیروں کے لیے گناہوں کی معافی کے واسطے بہایا جاتا ہے۔ فسح منانے میں ہماری رہنمائی کرنے کے لیے مسیح نے فسح کی روٹی کھاتے اور فسح کی میت پیتے ہوئے نمونہ قائم کیا۔ مسیح کے فسح منانے کا منظر ایک مشہور مصور کے ذریعے ساری دنیا کے لوگوں کو متعارف کروایا گیا، لیکن بہت ہی کم یہ جانتے ہیں کہ وہ فسح منا رہے تھے۔ ہر کوئی دی لاسٹ سپر کو جانتا ہے، لیکن جب ہم کہتے ہیں کہ در حقیقت دی لاسٹ سپر فسح ہے تو بہت سے لوگ یہ کہتے ہوئے رد عمل ظاہر کرتے ہیں کہ کیا واقعی یہ فسح ہے؟ ایسا کہاں لکھا ہے؟ اس کے ذریعے ہم مکمل طور پر سمجھ سکتے ہیں کہ آج کل ساری زمین پر کس قدر تاریکی چھائی ہے۔ فسح جسے ہم منا رہے ہیں اسے خدا اور کتاب مقدس نے تسلیم کیا اور اس کی تعریف و تائید کی۔ چونکہ خدا ہمیں بکثرت برکات بخشتے اور ہمیں آسمان پر جانے والے اپنے لوگ تسلیم کرتے ہیں تو سچائی پر ہمیں اور زیادہ فخر اور بھروسہ رکھنا ہے۔ ہم دوسرا کرنتھیوں باب 10 آیت 18 سے دیکھتے ہیں، کیونکہ جو اپنی نیک نامی جتاتا ہے وہ مقبول نہیں، بلکہ جس کو خداوند نیک نام ٹھہراتا ہے وہی مقبول ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جسے خدا نیک نام ٹھہراتے ہیں وہی صحیح ہے۔ خدا نے کسے نیک نام اور مقبول ٹھہرایا ہے؟ جو فسح مناتے ہیں وہی صحیح ہیں۔ ایسا کیوں ہے؟ میں نے تمہاری رہنمائی کے لیے بہت سے نمونے قائم کیے ہیں، پھر بھی کیا صرف سیون ہی ایسی جگہ نہیں جو بالکل ٹھیک میرے قائم کردہ نمونوں پر چلتی ہے؟ یوں خدا نے کہا، جو اپنی نیک نامی جتاتا ہے وہ مقبول نہیں، بلکہ جس کو خداوند نیک نام ٹھہراتا ہے وہی مقبول ہے۔ اس معاملے کے لیے لوکا نے اس طرح سے لکھا تھا کہ لوکا 22 باب کی طرف جاتے ہیں اور ایک بار پھر تصدیق کرتے ہیں کہ فسح وہ راہ اور سچائی ہے جو آسمان کو لے جاتی ہے۔ لوکا باب 22 آیت 15، اس نے ان سے کہا، یہاں اس نے سے مراد یسوع ہیں۔ یہ وہ الفاظ ہیں جو یسوع نے خود کہے تھے۔ مجھے بڑی آرزو تھی کہ دکھ سہنے سے پہلے کیا کھانے کی آرزو تھی؟ یہ فسح تمہارے ساتھ کھاؤں۔ وہ کون سی عید تھی جسے یسوع کو منانے کی بڑی آرزو تھی؟ یہ عید فسح تھی۔ خدا نے کہا، مجھے بڑی آرزو تھی کہ یہ فسح تمہارے ساتھ کھاؤں۔ جیسا کہ لوگ خدا کے ہیں تو اب ہم فسح کے وسیلے خدا میں ہیں۔ علاوہ ازیں اب ہم خوشی سے دوڑتے ہوئے اس آسمان کی راہ پر ہیں جسے خدا نے ہمارے لیے تیار کیا ہے۔ ہمیں ضرور اس حقیقت پر فخر اور بھروسہ کرنا چاہیے۔ آپ سب، آسمان کی بادشاہی وہ جگہ نہیں جہاں دنیا کے بہت سے لوگ اپنی باتوں سے داخل ہو سکتے ہیں۔ چونکہ نجات خدا کے عہد کے وسیلے بخشی گئی ہے تو خدا نے پہلے ہی فسح کے وسیلے تمام بنی آدم کے لیے ابدی زندگی اور نجات کے وعدے کی تصدیق کر دی ہے۔ دنیا میں کئی کلیسیاں کہتی ہیں کہ خدا کی کلیسیا فسح مناتی ہے۔ کیا یہ عجیب بات نہیں کہ ایک کلیسیا فسح مناتی ہے؟ دنیا میں کوئی ایسی کلیسیا نہیں جو فسح مناتی ہے، لیکن چونکہ کوئی ایسی کلیسیا نہیں جو فسح مناتی ہے تو خدا نے اس دنیا کے بارے میں کیا کہا ہے؟
जब हम यशायाह 60 बाब से देखें तो इस दुनिया को नूर और सच्चाई के बगैर तारीक जगह कहा गया है। इसके तारीक होने की वजह यह है कि इंसानों की आंखों और उनके दिलों पर पर्दा पड़ा है। जब हत्ता की सच्चाई के नूर की हल्की सी भी झलक ना थी, तब खुदा इस जमीन पर रोशनी की लकीर के तौर पर आए और हर तरफ नए अहद की फसा के नूर को चमकाया। जब सच्चाई का नूर हमारे दिलों पर चमका तो मशल रोशन हो गई थी। जब दो लोगों ने नूर को कबूल किया तो दो मशलें रोशन हो गईं। अब सारी दुनिया में बहुत सी मशलें रोशन हो गई हैं। जलते हुए मशलों की तादाद बढ़ती रहेगी। लूका 22 बाब में खुदा ने कहा, मुझे बड़ी आरजू थी कि ये फसा तुम्हारे साथ खाऊं। उनके अल्फाज किस कदर मुखलिसाना थे। मुझे बड़ी आरजू थी कि ये फसा तुम्हारे साथ खाऊं। सिर्फ मुझ अकेले को ही आसमान की बादशाही में नहीं जाना चाहिए। चूंकि मेरी बड़ी आरजू है कि तुम मेरे साथ जाओ, तो राह सिखाने के लिए मैंने एक नमूना कायम किया है। दरअसल अगर खुदा फसा ना मनाते तो क्या वो आसमान पर जाने के काबिल ना थे? तो फिर क्यों उन्होंने फसा मनाई? इसकी वजह हमारे मनाने के लिए एक नमूना कायम करने की थी, हमें सिखाने के लिए कि अब से हम भी वैसा ही करें। जब खुदा जमीन पर आए थे तो उन्होंने बपतिस्मा भी लिया था। आपके ख्याल से उन्होंने क्यों बपतिस्मा लिया था? खुदा को बपतिस्मा लेने की कोई जरूरत नहीं थी। बपतिस्मा एक ऐसी रस्म है जिसमें से एक गुनाहगार को गुनाहों की माफी पाने के लिए गुजरना पड़ता है। तो फिर क्यों खुदा ने जो रास्त है बपतिस्मा लिया? ऐसा क्या था जो खुदा ने हम पर जाहिर किया? इसका मकसद हर उस काम को पूरा करना था जो खुदा ने हमारे नमूने के लिए किया था। चूंकि मसीह ने कहा, राह, हक और जिंदगी मैं हूँ, तो क्या हमें उस राह की पैरवी नहीं करनी चाहिए जो उन्होंने हमें दिखाई है? इस हकीकत पर फख्र करते हुए कि हमारी कलीसिया इस राह पर चल रही है, तो हमें अपने आसपास लोगों से पुरएतमादी से कहना चाहिए कि आओ हम फसा मनाएं ताकि हम अब्दी जिंदगी पाएं और इकट्ठे आसमान पर वापस जाएं। चूंकि फसा वो राह और सच्चाई है जिसे यीशु ने तस्लीम किया, तो क्या हमें इस सच्चाई की साफ साफ गवाही देने के काबिल नहीं होना चाहिए? आयत 19 की तरफ जाते हैं। फिर उसने रोटी ली और शुक्र करके तोड़ी और ये कहकर उनको दी कि ये, दूसरे अल्फाज में, ये फसा की रोटी मेरा बदन है जो तुम्हारे वास्ते दिया जाता है। खुदा के बदन के लिहाज से बात करें तो क्या ये फानी है? यीशु ने अहद कायम करते हुए हमें ये कहकर फसा की रोटी दी कि मेरा ये बदन गैर फानी और अब्दी है। ऐसा क्या है जो हमें करना चाहिए? मेरी यादगारी के लिए यही किया करो, यही किया करो। ये अल्फाज किसके हैं? ये अल्फाज हमारे किसी हमसाये के या किसी राहगीर के नहीं हैं। ये खुदा ही थे जो निजात का मरकज और मंबा है, जिन्होंने कहा यही किया करो। अगरचे ये खुदा का हुक्म है, पर शैतान बागे अदन से ही हमेशा खुदा के खिलाफ बोलता है। खुदा ने हमें जो भी ना खाने को कहा, शैतान ने वो खाने को कहा, और खुदा ने हमें जो भी खाने को कहा, शैतान ने वो ना खाने को कहा। फसा की रोटी और मैं के बारे में खुदा ने कहा, मेरी यादगारी के लिए यही किया करो। आयत 20। और इसी तरह खाने के बाद प्याला ये कहकर दिया कि ये प्याला मेरे उस खून में नया अहद है जो किसके वास्ते बहाया जाता है? तुम्हारे वास्ते बहाया जाता है। हम बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि फसा नया अहद है। नए अहद की तमाम सच्चाइयों में से जिनका यीशु मसीह ने ऐलान किया था, ये इंतहाई अहम हिस्सा है। अगरचे यीशु ने कहा, मैं फसा मनाऊंगा और मुझे इसे मनाने की बड़ी आरजू है, पर आजकल सारी दुनिया में यीशु पर ईमान की दावेदार तमाम कलीसियाएं इसे नहीं मनाती हैं। वाकई ये बहुत अजीब और ताना अमेज बात है। सब कलीसियाएं यीशु पर ईमान रखने का दावा करती हैं और कहती हैं कि वो हत्ता कि यीशु के छोटे से काम को भी अहम समझते हैं। अगरचे वो हर तरह से यीशु की तस्वीर बनाते और मुसव्वरी करते हैं, पर फिर भी क्या ये हैरान कुन नहीं है कि उन्हें फसा का कोई अंदाजा नहीं है? वो देखते हुए क्या देखते हैं? नहीं देखते, और सुनते हुए नहीं सुनते और नहीं समझते।
खुदा की नबुव्वतें बिल्कुल ठीक ठीक पूरी हुई हैं, लेकिन मुबारक है तुम्हारी आंखें इसलिए कि वो देखती हैं और तुम्हारे कान इसलिए कि वो सुनते हैं। आप सब, हम बहुत मुबारक हैं। हमारे सयून के तमाम खानदानी अराकीन इंतहाई मुबारक हैं। शायद आप हैरान हों कि मैं इस या उस मामले में अच्छा क्यों नहीं हूं, लेकिन ये भी एक बरकत है। आप सब, फर्ज करें आप हर काम में माहिर हैं, तो क्या आप खुदा से मदद मांगेंगे? जिन लोगों में कमी होती है वही बड़ी संजीदगी से दुआ मांगते हैं। ऐसे लोग माहिर लोगों की निस्बत ज्यादा संजीदगी से दुआ मांगते हैं। ऐसे लोगों पर गौर करें तो खुदा किन लोगों को ज्यादा बरकत देंगे? क्या ये वो है जो खुद से कहता है कि मैं हर काम में माहिर हूँ और अपनी काबिलियत की बिना पर हर मामले को देखता है? या ये कोई ऐसा शख्स है जो पुरफजल तौर पर यूं दुआ करता है कि ऐ खुदावंद, मैं गुनाहगार हूँ, मैं कमजोर और बहुत सी बातों में कम हूँ, लेकिन आपने मुझे आसमान में जाने की इजाजत देकर सयून में बुलाया है। मैं आपके फजल के लिए आपका शुक्र अदा करता हूँ। शायद कोई आसानी सोचे कि पौलुस रसूल किताब मुकद्दस की तालीम देने, मुनादी करने और हर काम करने में अच्छा था। दरअसल कुछ मामलात को लेकर उसमें भी खामियां थीं। इसलिए उसने 3 दफा ये कहते हुए खुदा से दुआ में मिन्नत की कि ऐ खुदा, बराहे करम मुझ में से शैतान का चुबाया गया कांटा निकाल दें। लेकिन जवाब इलाही ये था कि मेरा फजल तेरे लिए काफी है। मैंने अपनी मोहब्बत जाहिर करने के लिए ये कांटा तुझे दिया है, लेकिन अगर मैं इसे निकाल दूं तो क्या मैं अपनी मोहब्बत तुझसे खत्म ना कर लूंगा? इसलिए इस कांटे के साथ तसल्ली रखो और खुदा का शुक्र अदा करो। इसका एहसास करने के बाद पहले थिस्सलुनीकियों 5 बाब में पौलुस रसूल ने क्या कहा था? हर वक्त खुश रहो, बिला नागा दुआ करो और हर बात में शुक्रगुजारी करो। जैसा कि मैंने पहले जिक्र किया था कि इंसानी जिस्म में खून की रगों की लंबाई कितनी है? क्या आप यकीन करेंगे कि ये 90,000 किलोमीटर लंबी हैं? शायद आप सोचते हो कि क्या ये 1 किलोमीटर लंबी हैं? जमीन का कुतर तकरीबन 40,000 किलोमीटर है। बस खुदा ने हमारे जिस्म में खून की रगों को जमीन के 2.5 कुतर के बराबर बनाया है। खुदा ने खून की इन रगों में निहायत छोटे सुराख बनाए हैं ताकि इनमें खून बह सके। अगर खुदा ने हमें बेशकीमत और काबिल कदर ना समझा होता तो वो क्यों कर हमें इतनी पेचीदा बनावट से तख्लीक कर सकते थे? हमें यकीन रखना और समझना चाहिए कि हमारा वजूद ही इस बात का सबूत है कि हम खुदा से लामहदूद मोहब्बत पा रहे हैं। इस बात पर अपने यकीन के लिए भरोसा रखें और इस एहसास के जरिए हम सब हौसला रखें। खुदा ने बगैर किसी वजह के ऐसे ही हमारे जिस्म में इतनी लंबी रगें नहीं बनाई हैं। आसमान की अब्दी बादशाही में हमें ले जाने के लिए खुदा ने हम पर अपना बकसरत फजल किया है। आज भी मैं आसमानी बाप और आसमानी माँ का शुक्र अदा करता हूँ कि उन्होंने हमें फसा की सच्चाई को समझना बख्शा है। फसा की तस्वीर को देखते हुए दुनिया में लोग महज इसे द लास्ट सफर पुकारते हैं। ताहम हम ये कहने के काबिल हैं कि ये नए अहद की फसा है। जो हम अपनी आंखों से देखते हैं वो यकीनन उससे मुख्तलिफ होगा जो वो अपनी आंखों से देखते हैं। लोग दावा करते हैं कि देखने के लिए उनकी आंखें हैं और फिर भी वो देख नहीं सकते, लेकिन हमारी आंखें देख सकती हैं। फसा के वसीले आसमान से रूह कुद्स की कुव्वत पाने के बाद जब यशवा और इसराइलियों ने यरीहो के गिर्द 7 बार चक्कर लगाए थे, तो क्या उनके जोर से ललकारने के बाद यरीहो की दीवारें गिर ना गई थीं? जैसा कि खुदा ने फसा के वसीले बनी इसराइल के साथ अहद कायम किया था, ये एक ऐसा मंबा बन गया था जिसने उन्हें फतह से हमकिनार करवाया था। क्या सिर्फ बात यहीं खत्म हो गई? यूसिया बादशाह के जमाने में लोग लंबे अरसे से अपने देवताओं के तौर पर बुतों की परस्तिश कर रहे थे, लेकिन एक दिन उन्हें खुदा की हैकल से अहद की किताब मिली। अहद की उस किताब के अंदर फसा नामी खुदा की एक ईद का जिक्र मौजूद था, लेकिन उन्होंने उसे पहले कभी नहीं मनाया था। यूसिया बादशाह के 18वें बरस यूसिया बादशाह ने फसा मनाई जैसा उस किताब में लिखा था। तब खुदा ने यह कहते हुए यूसिया पर अपनी बरकत नाजिल की कि इससे पहले कोई बादशाह इसकी मानिंद ना हुआ था जिसने अपने सारे दिल और अपनी सारी जान और अपने सारे जोर से खुदा की शरीयत मानी हो। क्या यूसिया बादशाह ने खुद ही इस तरह से अपनी नेक नामी और तारीफ की थी? जैसा कि आप जानते हैं, क्या ये खुदा की तरफ से नहीं हुआ था? नीज हिजकिय्याह बादशाह के बारे में क्या कहेंगे?
माजी के बादशाहों में से फसा मनाने वाले किसी बादशाह को मनफी नतीजे का सामना नहीं करना पड़ा था। फसा ना मनाने वाले बादशाह बिगड़ गए, बुतों की प्रतिष्ठा करने लगे, खुदा की मर्जी के खिलाफ गए, बुराई में दिल लगाया और जालिम बन गए। फसा को पाक मानकर खुदा से रहनुमाई पाने वाले तमाम बादशाह किताब मुक़द्दस की तारीख में अजीम शख्सियात बने। अय्यूब बाब 8 के जरिए खुदा के कलाम का खुलासा करते हैं। फसा खुदा का ऐसा हकीकी फजल है जो आसमान की बादशाही को रहनुमाई करता है। ये बात जहन में रखते हुए कि फसा एक ऐसी ईद है जिसे मनाने के लिए खुदा ने जमीन पर मुजस्सम होकर खुद बड़ी आरज़ू का इजहार किया था। आइए हम अय्यूब की किताब के 8वें बाब की तरफ जाते हैं। अय्यूब बाब 8 आयत 7। और अगरचे तेरा आगाज छोटा सा था तो भी तेरा अंजाम बहुत बड़ा होता। जरा पिछले जमाने के लोगों से पूछ और जो कुछ उनके बाप दादा ने तहकीक की है उस पर ध्यान कर। उनके बाप दादा में से यूसिया बादशाह और हिजकिया बादशाह थे। यूसिया भी उनमें से था। उन सब ने क्या सीखा था? हिजकिया बादशाह जो मरने के करीब था, खुदा ने उसकी जिंदगी में 15 सालों का इजाफा कर दिया था और हत्ता के सूरज को पीछे कर दिया था। किताब मुक़द्दस में दर्ज करने के लिए खुदा ने ऐसे शानदार मोजज़े किए थे। मुझे यकीन है कि यिर्मयाह 31 बाब में बख्शा गया कलाम आपको याद है। देख वो दिन आते हैं, खुदावंद फरमाता है, जब मैं इस्राएल के घराने और यहूदा के घराने के साथ नया अहद बांधूंगा। बल्कि ये वो अहद है जो मैं उन दिनों के बाद इस्राएल के घराने से बांधूंगा। खुदावंद फरमाता है, मैं अपनी शरीयत उनके बातिन में रखूंगा और उनके दिल पर उसे लिखूंगा और मैं उनका क्या हूंगा? खुदा हूंगा और वो मेरे लोग होंगे। अपने और अपने लोगों के दरमियान ताल्लुक को कायम करने के लिए खुदा ने क्या इस्तेमाल किया? नया अहद। खुदा के साथ हमें मुकम्मल तौर पर एक करने के लिए और इस दुनिया में हमें खुदा के करीब लाने के लिए इससे ज्यादा पाक सच्चाई नहीं है। वो जिन्हें निजात पाने की जरूरत नहीं, उनके लिए शायद फसा मनाने की भी जरूरत नहीं है। ताहम जिन्हें निजात पाना जरूरी है, उन्हें जरूर फसा मनानी चाहिए। क्या इसी वजह से खुदा ने हमारे लिए नमूना कायम नहीं किया था? हमें आसमान को ले जाने की गर्ज से 2000 साल पहले खुदा ने खुद हमें फसा मनाने का नमूना दिखाया था। एक बार फिर रूह कुद्स के इस आखिरी जमाने में हमारे आसमानी बाप और माँ हमारे नमूने के लिए इस जमीन पर आए हैं। सयून में हमारे खानदानी अरकान से मैं संजीदगी से कहता हूँ कि उन तमाम काबिल तर्स रूहों को जगाएं जो इस तरह रह रही हैं गोया ये जिस्मानी जिंदगी ही सब कुछ है। उन्हें इस बात का एहसास दिलाएं कि आसमान की बादशाही वजूद रखती है, ताकि हम सब इकट्ठे वहाँ जाएं, इस उम्मीद के साथ कि आपने ज्यादा फजल पाया है। मैं आज का वाज खत्म करूंगा। आपका बहुत शुक्रिया।